Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Light School Salman Farsi Campus YouTube channel. Today, dear students, we are discussing social studies for class 1, unit number 1 about myself. Today, we are reviewing the unit number 1 from page number 9 to 11. This is your work pages. So, we will discuss the work pages and we will review the unit overall. Let's start the lesson. First of all, learning outcomes. Students will be able to review unit number 1. तो हम यूनिट नंबर 1 को रिव्यू करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा है आज उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे जो हमने इस यूनिट के अंदर अब तक पढ़ा है लास्ट लेसन्स के अंदर. ये आपका वर्क पेज नंबर 9 बुक के पेज नंबर 9 पर है ये वर्क पेज. उसमें फर्स्ट 3 एक्टिविटीज़ हैं वहाँ जो हमने डिस्कस करनी है. सबसे पहली एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स. तो वो हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को. वहाँ पिक्चर सामने बनी हुई है. यू कैन सी द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ द लाइन. ईच लाइन in front of the each line there is a picture and you know very well these parts of the body, so you will just write the names of these parts of the body in the blanks. This is my, you can see there is foot, this is my foot. Next, this is my hand and there is a picture of hand in front of this, the second line. Third sentence is this is my ear, you can see the ear here. And the fourth is this is my nose, you can see the picture of the nose here. So this is a very easy activity that you can fill these blanks easily by seeing and looking at these pictures. And the second one is an activity about the color of the color of the hair and the eyes. This is Sarah, you can see the picture of the Sarah here. What color? You have to tell the color of the hair and the eyes. So number 1, this is Sarah. She has, what is the color of her hair? Can you see? It is black or brown? What color is it? Yes, it is black. So she has black hair. Second, her eyes are, you can see in the book, it is, this picture is also mentioned in the book. You can see the picture in the book clearly. Her eyes are, what is the color of her eyes? Can you see, children? Yes, her eyes are black. So you will write black here in this line. Next activity, what color? The second one, this is Tim. The name of this boy is Tim. He has, what is the color of his hair? Yes, the color of his hair is black. Oh, sorry, black? No, brown. He has brown hair. You can see brown hair here. And then what is the color of his eyes? His eyes are brown. His eyes are brown. And now you have to tell the color of your hair. My hair is, if your hair is black, then you can write here black. If they are brown, you can write here brown or any other color if you have the. So you have to write the color of your hair in this blank. My eyes are, what is the color of your eyes? Whatever the color of your eyes is, you have to write in this blank the color of your eyes. अपनी eyes का color आपको यहाँ पर लिखना है. तो ये आपकी एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस पेज पर, पेज नंबर 9 पर. नेक्स्ट आपके पेज नंबर 10 पर ट्रू और फॉल्स की एक एक्टिविटी है. दिस इज नजीब. द नेम ऑफ दिस पर्सन इज नजीब. लुक एट द पिक्चर एंड मार्क द स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स. तो आपको ये साइन लगाना है, या टिक का जो साइन लगा हुआ है, ये आपको यहाँ पर जो आप समझते हैं स्टेटमेंट, इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये ठीक है स्टेटमेंट तो आपको ट्रू पे टिक लगाना है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको फॉल्स पे टिक लगाना है. तो लुक एट द दिस पर्सन, दिस इज नजीब. सो नजीब हैज़ 3 आर्म्स. कैन यू सी द आर्म्स? हाउ मेनी आर्म्स आर देयर?
Najib has 3 arms. So if the statement is true, if this sentence is true, then you can tick the true, or if it is false, as I think so you have to tick here on the false. Second question, a second sentence, he has 2 ears. Where is the ears? Where is his ears? Can you see the ears? How many ears are there? He has 2 ears. Is this statement true or is this statement false? If this statement is true, then you have to tick the true here, or if this statement is false, you can tick here. His hair is gray. So you can see the color of his hair. So if his hair color of his hair is gray, then you can tick here, or otherwise you can tick here. Najib's eyes are green. Look at the color of his eyes. If the color of his eyes is green, then you can tick true, or if it is not green, then you can tick the false. So you have to do this activity at your own. Next activity, try to balance on one leg. This is a picture like this. Can you balance on one leg? Can you? आप इस तरह खड़े हो सकते हैं वन लेग पे? Yes, you can for time, maybe for a minute or two, but not more than that. You can't balance on one leg. You are given 2 legs. This is why आपको 2 टांगे दी गई हैं कि आप एक लेग पर आप बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल है. तो आपकी इस तरह आपके जो बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं वो सब इंतहाई सही तरीके से जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो सब दिए गए हैं आपको. वो अल्लाह ताला ने आपको दिया सब कुछ जो आपको ज़रूरी था. तो 2 टांगें 2 लेग्स आपको इसलिए दी गई हैं ताकि आप बैलेंस हो, दौड़ सकें, भाग सकें, चल सकें, एक्टिविटी कर सकें, खेल सकें और काम कर सकें. ड्रॉ पिक्चर विद योर लेफ्ट हैंड. अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपको लेफ्ट हैंड से एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. तो एक हमारा फेवरेट हैंड होता है जिससे हम काम कर रहे होते हैं, तो आपको उससे ज़ाहिर है आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, और दूसरे हैंड से आपका कंट्रोल कम होता है. आप राइटिंग कर लें, पिक्चर ड्रॉ कर लें, या आप राइटिंग करके देखें तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है आपके फेवरेट हैंड में, आपके स्ट्रॉन्ग हैंड में और आपके दूसरे हैंड में. तो ये आपकी एक्टिविटी करनी है, दोनों आपको बैलेंस करना है. कितनी देर तक कर सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि आपको अल्लाह ने, और ऐसे लोगों को भी देखें जिनके पास ये नेमतें नहीं होती. ये पार्ट्स ऑफ बॉडी ये अल्लाह ताला की नेमत है बहुत बड़ी, तो इस नेमत से सही तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो गलत हो और जो नुकसानदेह हो हमारे लिए. ये ताकि ऐसा ना हो कि कहीं हमारी किसी गलती से हमारी कोई नेमत जो है वो ज़ाया हो जाए. ऐसी कोई हरकत हमें नहीं करनी चाहिए. खूब इन पार्ट्स की हिफाजत करनी चाहिए. प्राइसलेस हैं ये, इनकी कोई कीमत दे नहीं सकता, ठीक है. इसलिए इनकी बहुत हिफाजत भी करनी चाहिए, उनसे अच्छे अच्छे काम लेने चाहिए. तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है ये हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं. नेक्स्ट देखें बेटा, रिव्यू ऑफ द पेज में हम आखिरी पार्ट पर आ गए, पेज नंबर 11 में. इस यूनिट में हमने जो अब तक देखा है वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले हमने अपना डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करा सकते हैं, अपने बारे में कैसे बता सकते हैं. तो पेज नंबर हमने 2 में देखा था, अबाउट माई सेल्फ में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो इंट्रोडक्शन अपना हम कैसे कराते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना नेम बताते हैं, हम ये बताते हैं बॉय हैं या गर्ल हैं, अपनी एज बताते हैं अपने. तो ये हम अपने बारे में, और क्या हमें लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं हमारे, हमें क्या पसंद है क्या नापसंद है, ये सब चीज़ें हम बताते हैं अपने बारे में. तो ये अबाउट माई सेल्फ है हमारे. आगे फिर हम फैमिली के बारे में जब आते हैं, हमारे पेरेंट्स कौन हैं, हमारे बहन भाई कौन हैं, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो ये हमारे फैमिली में हम आ गए. फिर माई सेल्फ से हम फैमिलीज़ की तरफ जाते हैं. ज़ाहिर हम किसी फैमिली का पार्ट होते हैं, तो उस फैमिली में एक टेयर होती है ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर उसके बाद पेरेंट्स की, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, और इसमें हमारे अंकल आंट वगैरह. तो ये पूरी जो फैमिली हमने डिस्कस की थी कि फैमिली कैसे होती है. अंकल आंट में फिर हमने आपको बताया था कि मैटरनल अंकल आंट कौन से होते हैं और पैटर्नल अंकल आंट होते हैं, ठीक है. वो सारा हमने बताया था. और फैमिली ट्री आपको बनानी बताई थी कि कैसे बनाते हैं. सबसे पहले ग्रैंड पेरेंट्स को रखते हैं, उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स को और अंकल्स को, आंट्स को रखते हैं, जो हमारे मैटरनल साइड से यानी मदर साइड से होते हैं, और जो पैटर्नल साइड से यानी फादर साइड से होते हैं. तो इस तरह हमने फैमिली ट्री बनाना सीखा था.
ये हमने काम किया था। उसके बाद फिर हमने अपनी बॉडी के बारे में, माय बॉडी जो सेकंड लेसन था हमारा, उसमें अपनी बॉडी के बारे में बताया, हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। तो ये सारा हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी को देखा था। और उसके बाद आज के लेसन में हमने अपना रिव्यू कर लिया कि आज हमने पूरे लेसन को कैसे पढ़ा है। और ये आपका होमवर्क कंप्लीट, ये जो आपको आज एक्टिविटी कराई गई है और ये जो आपको 9-10 पेज पे जो 9 A, B और C 3 एक्टिविटीज़ कराई हैं, ये आपको अपनी बुक में सॉल्व करनी है बेटा, ठीक है। और ये एक्टिविटी जो आपको लास्ट स्लाइड में कराई है वो भी आपको करनी है और इस काम को आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है बेटा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुल्लाह खैर।